Okay, so a very welcome to all of the students. Now let's continue from where we have stopped last time. So we were doing type 3. Continuation है ये type 3 आपने already लिखा हुआ है तो आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. This heading you have already given. We are doing logarithmic differentiation. तो आज क्या हम नया सीखने वाले हैं logarithmic differentiation में. So before we move on to the problems, let us write down one. तो चलिए लिखिए at the top of the page write down on note. ये note बहुत important है. This is going to help us while solving the problem. Okay, write down. If we have ऐसा लिखो आप fx raised to gx. If we have fx raised to gx plus hx raised to px, ऐसा लिख लो आप. Write down this. If we have fx raised to gx plus hx raised to px, plus or minus, both applicable, plus or minus, then don't take log on both the sides. Then don't take log on both sides. इसके ऊपर हम आज एग्जांपल्स करने वाले हैं. मतलब अगर फंक्शन के पावर में फंक्शन है और प्लस माइनस है बीच में और फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है, then we are not going to take log on both the sides. Previous जितने भी examples है, we have taken log on both the sides and evaluated. So without talking much, let us start solving the problems which are dependent on this. Okay, so heading तो वही है, differentiate the following. Write down. Differentiate the following with respect to x. So let us continue with unit number 5. Okay, unit 5 का write down question number 5. Fifth question. Write down sin x to the power cos x plus cos x to the power sin x. Please make a note of this question. These questions do carry 3 to 4 marks. 3 से 4 मार्क के लिए आते हैं ये एग्जाम्पल. If this question comes, may come for 3 mark also or may come for 4 mark also, depends. Now see over here, function raised to function है, बीच में प्लस साइन है और ये भी फंक्शन रेज टू फंक्शन है. तो नोट क्या बोलता है, वी कैन नॉट टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स बिकॉज लॉग ऑफ ए प्लस बी को हम लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं लिख सकते. तो वी आर नॉट सपोज टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी. तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न. ओके, चलो राइट डाउन सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. राइट डाउन सॉल्यूशन. We will start the same way as we have started with the previous example. So लिखिए आप solution में let y is equal to, write down this step. First step आप लिखिए let y is equal to sin x to the power cos x. This is our first step, student. ठीक है. Now what we do, इसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, let y is equal to sin x to the power cos x. After that you write down, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. उसके बाद आप लिखिए let u is equal to sin x to the power cos x and let v be equal to cos x to the power sin x. जो फर्स्ट फंक्शन है इसको हमें u लेना है और जो सेकंड फंक्शन है इसको हमें v कंसीडर करना है. So therefore y
is further equal to what? U plus v. Write down this step. Y u plus v में convert हो चुका है. ठीक है. Now we know that u and v they are differentiable functions of x. तो अभी rule क्या बोलता है? If y is equal to u plus v, then dy by dx, then dy by dx is nothing but equal to du by dx plus dv by dx. Recollect sum and the difference rule that we have done in standard 11. तो बीच में प्लस माइनस साइन रहेगा, तो नेवर टेक लॉग ऑन बोथ द साइड. जो फर्स्ट वाला फंक्शन है, जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लेट y इज इक्वल टू से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है. फर्स्ट फंक्शन को आपको u लेना है, सेकंड वाले फंक्शन को v लेना है. तो y इज इक्वल टू u प्लस v में कन्वर्ट हो गया. देयरफॉर dy by dx, ये आप देन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. इवन इफ यू डोंट राइट डाउन दिस देन वाला स्टेटमेंट, देन विल आल्सो डू. तो देयरफॉर dy by dx is du by dx plus dv by dx. अब इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन 1. नाउ व्हाट विल डू, फर्स्ट हमें du by dx निकालना है. तो फर्स्ट हम u को कंसिडर करेंगे. लेट अस कंसिडर u एंड सॉल्व फॉर du by dx. इक्वेशन 1 के बाद राइट डाउन कंसिडर, प्लीज राइट डाउन एज इट इज आई एम शोइंग यू. ठीक है. Consider u is equal to sin x to the power cos x. Okay. Now what does the rule say? अगर फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. Now we have to take log on both the sides of equality. अभी देखो बीच में कोई प्लस साइन नहीं है, नथिंग, ना माइनस साइन है ना प्लस साइन है. So obviously we can take log on both the sides of equality. This procedure is true for all such kind of examples. Okay, तो चलो राइट डाउन टेकिंग लॉग. इसके बाद देखो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड पे लॉग लेना है. तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी लॉग यू एंड द राइट हैंड साइड विल बी लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स. दोनों साइड पे लॉग ले लिया. Now according to the law of logarithm, this cos x will come in multiplication. तो देखिए क्या मिलेगा हमें? Therefore log u is equal to, this will be written as cos x into log of sin x. हमने क्या किया? u को कंसिडर किया, taken log on both the sides of equality and we have simplified. Now we will differentiate after this. इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. ओके. तो चलो लेट्स कंटिन्यू अहेड. नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यूएशन ऑफ दिस. चलो मैं यहीं पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इसके बाद आप लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो वी आर सपोज टू टेक ऑपरेटर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड साइड में इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू. राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? तो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों साइड पे डी बाई डी एक्स ले लिया हमने. नाउ वी नो d by dx of हमने लास्ट टाइम लिखा था d by dx of log y 1 by y dy by dx होता है. Similarly d by dx of log u will be 1 by u into du by dx. Please remember u constant नहीं है. ध्यान से देखो u x का फंक्शन है. u is a differentiable function of x. It is not a constant. So log u का derivative is 1 by u du by dx. So now quickly apply u into v rule. ठीक है. तो cos x remaining same. log sin x का derivative क्या मिलेगा? तो it will be 1 by sin x into derivative of sin x, that is nothing but cos x, plus log sin x will remain same.
सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो cos x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो cos x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट माइनस sin x, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव इज टू बी अप्लाइड। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी सीखी हुई है 11th स्टैंडर्ड में। ओके, नाउ टू थिंग्स वी विल डू, एक तो इस u को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एट द सेम टाइम वी कैन रीअरेंज एंड सिंप्लीफाई, so write down therefore du by dx, ठीक है। नाउ दिस प्रोसीजर इज नॉट न्यू टू अस, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है ऑलरेडी। तो du by dx इज इक्वल टू u क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x by sin x, so this is nothing but cot x into cos x, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos square x by sin x also you can write down, but I am writing down it as cot x into cos x, plus of minus is minus, and this is nothing but sin x into log sin x। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये sin x इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, हाँ, log sin x एक टर्म है, ये sin x दूसरा टर्म है, ठीक है ना। तो प्लस ऑफ माइनस इज माइनस एंड आई हैव रीअरेंज्ड। नाउ फाइनली व्हाट इज टू बी डन, ये u हमें रिप्लेस करना है। रिकलेक्ट आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम, राइट हैंड साइड में एवरीथिंग शुड बी इन फॉर्म ऑफ x, x के फॉर्म में होना चाहिए, तो u को हम रिप्लेस कर देंगे, तो u is sin x to the power cos x, so write down final answer for du by dx। so du by dx is nothing but u will be replaced by sin x to the power cos x, ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, so this is nothing but cot x into cos x minus this is nothing but sin x into log sin x and the bracket closes। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। we have to differentiate the following with respect to x, मतलब हमें dy by dx निकालना है, we have to find out dy by dx, but dy by dx डायरेक्ट नहीं निकलेगा स्टूडेंट, I repeat it is du by dx plus dv by dx। अभी जैसे हमने u को सॉल्व किया है ना, वैसे ही हमें v को सॉल्व करना है। चलो नाउ लेट्स डू इट क्विकली। नाउ लेट अस सॉल्व फॉर v, so write down consider, और you can write down now consider, ऐसा लिख सकते हो, now consider, ठीक है। अभी u लिखो, तो v वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो v is equal to what is v students, so v is nothing but cos x to the power sin x, now taking log on both the sides, so therefore अभी थोड़ा डायरेक्टली लिखेंगे हम, so left hand side will become log v and right hand side will become what, so right hand side will be log of cos x to the power sin x। अब ये sin x मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा by the law of logarithm, so log v is nothing but equal to sin x into log cos x। now we'll differentiate with respect to x, तो देखिए आगे differentiating with respect to x। चलो तो लेट्स क्विकली फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस। अभी ये इक्वेशन 1 आप ध्यान रखो, ये इक्वेशन 1 हमें लगने वाला है, इक्वेशन 2 लगने वाला है, इट्स गोइंग टू बी रिक्वायर्ड अहेड। ओके, चलो तो व्हाट आई डू इज आई रब दिस ऑफ, ये वाला पार्ट में रब कर देता हूँ यहाँ से, कंसिडर वाला, टिल हियर आई कीप इट सेम। चलो ठीक है, इसको भी रब कर देता हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। So let's continue after this. So when we differentiate with respect to x, we will be taking operator on both the sides of equality, ठीक है। तो therefore क्या मिलेगा हमें, d by dx of log v is equal to d by dx of sin x into log cos x। चलो now quickly find out, apply u into v rule and find out the derivative of this, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ, ये स्टेप के बाद ये स्टेप कंटिन्यूएशन है सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो क्वेश्चन दिया था हमें, तो सामने रख रहा हूँ मैं आपके। नाउ डेरिवेटिव ऑफ log v, तो d by dx of log v is what, 1 by v
into dv by dx, product rule. So sin x remaining same, sin x remaining same, derivative of log cos x. So what is derivative of log cos x, students? So it is nothing but 1 by cos x into derivative of cos x, which is nothing but minus sin x, plus log cos x will remain same. Log cos x will remain same. Now derivative of sin x is nothing but cos x and the bracket closes. अब दो चीजें हम करेंगे, एक तो v क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम ब्रैकेट को. So therefore dv by dx is nothing but equal to v times of, okay, sin by cos is tan, तो ये tan x into sin x हो जाएगा, but there is a minus sign, तो यहाँ पे माइनस साइन डालना पड़ेगा हमें. ठीक है, प्लस I rearrange this, so this will be written as cos x into log cos x. ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट. अभी हम v रिप्लेस कर देंगे. लेट्स रिप्लेस v. So therefore dv by dx is nothing but equal to, so v will be replaced by what? देखिए आप नोटबुक में या बोर्ड पे भी देख सकते हो. v will be replaced by cos x to the power sin x से रिप्लेस हो जाएगा. ये ब्रैकेट तो सेम रहेगा. This bracket is nothing but minus tan x into sin x plus cos x into log cos x and close the bracket. और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3. वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम. 3 to 4 मार्क्स, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, क्योंकि लेंदियर प्रोसीजर है तो 4 मार्क के लिए भी आता है ये प्रॉब्लम. तो क्या किया हमने स्टूडेंट? वी हैव फाउंड आउट du by dx, वी हैव फाउंड आउट dv by dx, पर अपने को क्या चाहिए? dy by dx चाहिए, है ना. तो ऐसा लिखो आप, फ्रॉम 1 2 and 3. आफ्टर दिस स्टेप यू राइट डाउन फ्रॉम equation number 1 2 and equation number 3. Now see what is equation number 1 for your reference. आप आपका equation number 1 देखो. अभी मेरे पास बोर्ड पे है नहीं. ठीक है, तो you see your equation number 1, equation number 2 is over here and equation number 3 is over here. तो लिखो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? Therefore dy by dx is equal to, क्या होता है? du by dx plus dv by dx ना. तो ये पूरा du by dx है. This whole thing is du by dx and this whole thing is nothing but dv by dx. तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो dy by dx मिलेगा. Write down dy by dx is sin x to the power cos x. देखो ये du by dx है हमारा, into bracket. ठीक है, I try to accommodate it over here. तो ये है cot x into cos x minus this is nothing but sin x into log sin x and close the bracket. Please refer equation number 1. It is du by dx plus dv by dx होता है. तो du by dx लिख दिया plus अभी dv by dx students. So what is dv by dx? So dv by dx is nothing but cos x to the power sin x into bracket, it is minus tan x into sin x plus it is nothing but cos x into log cos x and the bracket closes and this itself is the final answer. ये हमारा फाइनल आंसर है. ऑब्वियसली सब कुछ बोर्ड पे रखना पॉसिबल नहीं है, लेंदियर एग्जांपल है, तो इक्वेशन 1 में पहले रख कर चुका था, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3. ठीक है, वी हैव डन द एग्जांपल एंड नाउ द प्रॉब्लम इज ओवर. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस प्रोसीजर. तो आपको क्या याद रखना है? व्हेनेवर देयर इज अ प्लस और माइनस साइन बिटवीन द टू फंक्शंस, प्लस माइनस साइन है तो यू विल नेवर टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी. रॉन्ग हो जाएगा प्रॉब्लम पूरा. दिस इज हाउ इट इज टू बी डन. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस प्रोसीजर. Read down question number 6.
डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हेडिंग वही है, x रेज टू x होल रेज टू x एंड दिस इज x रेज टू x रेज टू x। ठीक है, चलो सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड अगेन 3 to 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू, ओके तो राइट डाउन लेट, फर्स्ट स्टेप लेट y इज इक्वल टू, मेरे को वापस एक बार क्वेश्चन ना लिखना पड़े इसलिए मैं उस पे जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप लेट y इज इक्वल टू करोगे। ओके चलो ऐसा कर लेते हैं, प्लस का प्रॉब्लम एक किया ना, लेट अस डू वन थिंग, इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो एक प्लस का प्रॉब्लम हो जाएगा तो एक माइनस का भी हो जाएगा। इट इज ट्रू फॉर बोथ प्लस एज वेल एज माइनस, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्लस लेट अस टेक इट एज माइनस से करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। ओके चलो नाउ प्लीज रिमेंबर वी आर नॉट सपोज टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या करेंगे, लिखिए लेट u is equal to x raised to x whole raised to x and v is equal to x raised to x raised to x. They are not equal, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। This thing and this thing they are totally different from each other. Laws of indices अप्लाई करके ये दोनों को सेम नहीं लिखना है, दोनों का डेरिवेटिव अलग आएगा। Let's see shortly. Okay, so what will happen? Therefore, what will this become? Therefore, y will be equal to u minus v हो जाएगा। प्लीज मेक इट माइनस, एक प्लस का किया ना तो एक माइनस का कर लेते हैं प्रॉब्लम, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों के लिए ट्रू है। ठीक है, तो therefore dy by dx is nothing but equal to du by dx minus dv by dx होता है। So let's number this as equation number 1. पूरा प्रोसीजर सेम है जो हमने अर्लियर एग्जांपल में किया है। नाउ व्हाट वी डू, वी कंसीडर u, सॉरी डाउन, कंसीडर u is equal to x raised to x whole raised to x. Now therefore u is equal to, in this case it will be written as x raised to x square, इसमें ऐसा लिख सकते हैं, in this it is possible x raised to x whole raised to x can be written as x raised to x square. ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ऐसा ब्रैकेट दिया है। Same is not true over here. Okay, now let us take log on both the sides. अभी देखो ये सिंगल फंक्शन है, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में log नहीं ले सकते, इट्स वेरी क्लियर, प्लीज डू रिमेम्बर। ओके सो राइट डाउन, टेकिंग log on both sides, ऐसा लिखो आप, टेकिंग log on both sides. So what do we get? Log u is equal to log of x raised to x square. अभी आप ये जो x है ना इसको ब्रैकेट डाल सकते हो, you can put up this bracket for x, ऐसा लिख सकते हो आप। By law of indices we have simplified this. Now what will happen? This x square will come in multiplication according to the law of logarithm. तो देखो क्या मिलेगा, therefore, ओके चलो थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, therefore log u is equal to, this will be written as x square into log x. प्लीज माइंड दिस स्टेप, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। ओके नाउ लेट अस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so therefore d by dx of log u is equal to d by dx of x square into log x. u into v rule, product rule apply करना है। Okay, now someone tell me what will be d by dx of log u quickly. 1 by u into du by d. Absolutely, 1 by u into du by dx आएगा। We have done it earlier example. तो चलो अभी जल्दी से हम u into v rule अप्लाई करते हैं। x square as it is, log x का डेरिवेटिव is nothing but 1 by x, ठीक है, प्लस log x will remain same and derivative of x square is nothing but 2x.
अभी दो चीजें हम करेंगे, एक तो u को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एट द सेम टाइम u को हम रिप्लेस भी कर देंगे, सो दैट वी कैन सेव अवर टाइम, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो चलो देखो क्या मिलेगा, देयरफॉर du बाई dx इज इक्वल टू, u क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और फिर u को रिप्लेस भी करेंगे x के टर्म्स में, तो व्हाट इज u गिवन, तो u इज नथिंग बट x रेस टू x रेस टू x। अब आप ये वाला u लिखो या ये वाला u लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया, रिप्लेस भी किया, तो सेव टाइम, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ पे x बचेगा एंड दिस विल बी रीअरेंज्ड एंड विल बी रिटर्न एज 2x into log x, close the bracket and number this as equation 2। तो ये हमें हमारा du by dx मिल गया स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट वी वांट इज नथिंग बट dv by dx, dv by dx रिक्वायर्ड है हमें। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। So now consider, ठीक है, v, so what is v students, v is x raised to x raised to x। अभी इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, x के पावर में x है और उसके पावर में x है, तो जैसा दिया है वैसे ही करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हमें। नाउ वी टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तभी मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ, लिखिए टेकिंग log on both sides। So when I take log on both the sides, what will this become? Log v is equal to, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x रेस टू x है ना, इसको एक टर्म मारना पड़ेगा, x रेस टू x रेस टू x, तो x रेस टू x को एक टर्म मारना पड़ेगा, तो दिस इज गोइंग टू बिकम x रेस टू x। चलो log लेना है ना, चलो डायरेक्टली नहीं लिखता हूं मैं, इसको log ले लेते हैं, तो दिस इज log ऑफ x रेस टू x रेस टू x। प्लीज चेक आउट दिस स्टेप। नाउ एज आई सेड, ये जो x रेस टू x है, ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, so therefore what do we get, so we get nothing but log v is equal to x raised to x into log x मिलेगा हमें। check this out, x raised to x into log x मिलेगा। अभी इसको भी हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसके बाद जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव लिया था, वी कांट टेक डेरिवेटिव डायरेक्टली ओवर हियर, द रीजन इज ये भी फंक्शन रेस टू फंक्शन है, x रेस टू x है यहाँ पे, so now we will again take log on both the sides। ऐसा लिखो आप वापस इसके बाद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फंक्शन रेस टू फंक्शन है और मल्टीप्लीकेशन में भी फंक्शन है, तो u इंटू वी रूल डायरेक्टली नहीं आएगा, so write down again taking log, again taking log on both the sides। ठीक है, तो आई जस्ट नीड टू रब दिस ऑफ, ये मुझे रब करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए लॉग ले लीजिए आप दोनों साइड पे, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी। So therefore what do we get students, therefore log of log v is nothing but equal to log of x raised to x into log x मिलेगा। This is what we obtain। So therefore log of log v is nothing but equal to, we'll apply product law of logarithm, तो क्या मिल जाएगा हमें, log of x raised to x into gets converted to plus and this is going to become log of log x। Please check out the steps। अभी क्या हो जाएगा, x के पावर में x है, तो ये x नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, therefore log of log v is nothing but equal to x into log x plus log of log x मिलेगा। स्टार्टिंग में कभी भी, प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में हम कभी भी लॉग नहीं लेंगे इफ देयर इज प्लस और माइनस साइन बिटवीन द टू फंक्शंस, प्लीज डू रिमेंबर दैट। So now we differentiate with respect to x, तो लिखिए differentiating with respect to x, तो दोनों साइड पे d by dx लेना पड़ेगा हमें, तो आई ट्राई टू अकोमोडेट, अभी therefore नहीं डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, नहीं तो फिर वो आएगा नहीं।
ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू, बीच में प्लस साइन है तो डी बाई डी एक्स दोनों को जाएगा, तो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x. इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, थोड़ा ज्यादा ही लेंदियर है, तो ये 4 मार्क के लिए ही आएगा. इट वोंट बी इवन आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, इट विल कम फॉर 4 मार्क्स. So we have taken d by dx on both the sides of equality. So therefore log of log v, तो log fx का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो log of log v का डेरिवेटिव क्या होगा, तो it will be 1 by log v into d by dx of log v. ऐसा लिखो आप, कंपोजिट फंक्शन है, log of fx is 1 by fx into d by dx of fx होता है. अभी यहाँ पे u into v रूल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x रिमेनिंग सेम, log x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 1 by x प्लस log x रिमेनिंग सेम एंड x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 1, दिस ब्रैकेट क्लोजेस ओवर हियर, प्लस log of log x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 1 by log x into derivative of log x which is nothing but 1 by x. ठीक है, अभी log v का डेरिवेटिव लेना है हमें, तो therefore 1 by log v into, ठीक है, d by dx of log v is nothing but 1 by v into dv by dx आएगा, and this is equal to d by dx of log v is 1 by v dv by dx. तो ये क्या हो जाएगा, this is going to become 1 plus log x plus this is nothing but 1 by x log x हो जाएगा. Please check out with the steps, students. I know it is lengthier, but marks भी तो 4 है ना अपने को उसके, तो चलो आगे कंटिन्यू करेंगे. अब क्या हो जाएगा, ये v log v है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो therefore quickly write down dv by dx is nothing but equal to v log v into bracket 1 plus log x plus 1 by x log x. ऐसा मिलेगा हमें, प्लीज चेक आउट. v log v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ लेट अस रिप्लेस v का वैल्यू और log v का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम, क्योंकि राइट हैंड साइड में एवरीथिंग शुड बी इन फॉर्म ऑफ x. तो देयरफॉर राइट डाउन dv by dx इज इक्वल टू व्हाट इज v, तो v इज x रेज टू x, कोई ब्रैकेट नहीं डालना है, इनटू व्हाट इज log v, तो log v इज x रेज टू x into log x, and this bracket will remain same, 1 plus log x plus 1 by x log x हो जाएगा, and close the bracket and number this as equation number 3. ठीक है ना, तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है ना, उसको हमें डालना है इक्वेशन नंबर 1 में. Now obviously I don't have that equation number 1 on the board, but dy by dx is du by dx minus dv by dx था, recollect. Okay, so I just drop this off because I will need equation 2 to be seen. ठीक है, ये इक्वेशन 2 सामने रखा है, इसको मैं बाद में रब कर दूंगा. इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमें इक्वेशन 1 में डालना है स्टूडेंट्स. ओके, तो चलो राइट डाउन फ्रॉम 1 2 and 3. राइट डाउन फ्रॉम, ऐसा देखो आप, from 1 2 and 3 dy by dx is equal to du by dx. So what is du by dx? So x raised to x into bracket x plus 2x log x. ठीक है, वो मेरे को रेफर करना था, इसीलिए मैंने इक्वेशन 2 यहाँ पे रखा. एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं है, पहले ही वो लिख चुके थे हम इसको.
फाइन कर चुके थे, तो इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3, ठीक है ना। तो dy by dx इज दिस du by dx minus dv by dx. So what is dv by dx? It is x raised to x into x square into log x into bracket 1 plus log x plus 1 by x log x होता है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यूल से फाइनली प्रॉब्लम इज ओवर। इतना बड़ा था तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। अब देखो दोनों अलग है, ये डेरिवेटिव देखो आप, du by dx जो मिला वो देखो, dv by dx मिला वो देखो, दोनों अलग है। तो x raised to x raised to x and x raised to x raised to x, they are totally different from each other. Do not get confused. जैसा दिया है वैसा ही आपको उसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स आप आपके मर्जी से ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते। यू कैन पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर एंड एज्यूम समथिंग, ठीक है। जैसा है सिस्टम वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। तो कंक्लूजन क्या हो गया, प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल्स कैन बी इजीली डन फ्रॉम द यूनिट। रिमेनिंग एग्जांपल्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस।